Everyone, this is Rahul Mohan Chandran, the greatest performer the world has ever seen. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Kemcho, Majama, Namaskaram, Vanakkam. Today I'm going to speak about why you need to boycott Bigg Boss Season 14. Here it goes. Reason is the show is rigged. Okay. The actual nature of the show is reality show. Okay, what do you mean by reality show? What happened on a real time basis? Nothing is planned. Very few things are planned over there. The contestants present over there, and who gets passed on to the next stage, everything, and who wins it. Everything should not be planned. It should be on the basis of the audience. But for the past few years, it's easily proved that it's not a reality show. It's a planned show, which shows that it is a drama. It should be a drama, but it is portrayed as if it's a reality show, but it's a drama. Just like watching a serial, which is already planned and it is shown to the audience. But you want to give it a name of reality show, but you want to have it planned to attract more systematic approach on this show. That's what is wrong about this show right now, and it's lost its significance. And there are a lot of other things as well. And the second point is Salman Khan getting 250 crores for 4 months. There is an absolute like 40%, more than 40% hike in his salary for 4 months. Okay, just for on an average per month he's getting 60 crores. Okay, previously he was getting around 12 crores for an episode. Now he's getting 11 to 12 crores for an episode. Now he's getting around like 20 crores for an episode. It really shows. Okay, it shows the disparity of economic means, and see the salary that it increases. Okay, the poor people has to bear the cost. More and more poor people will come in this country. If you give more and more salary to top people, अरे 1 crore बहुत हो जाता है यार. यहाँ पर 250 crores is too much. Okay, and we have to fight against this. Where is this finance going? It can create a movie mafia. It can even create a lot of things, be invested in a lot of other activities which is not good for the country as well. टैक्स उसका बाप को भी देना पड़ेगा. सल्लो अंकल किस खेत की मूली है, भगवान है क्या वहां पे, उसको भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा. खत्म कहानी. Nobody can evade tax and still stay secured. So he has to say, so I am paying tax, I need to pay. You should pay tax. समझ रहे बात को? यहाँ पे 10,000 20,000 रुपये मिलने वाले लोग टैक्स देते हैं, तो तू किस खेत का मूल्य है बे? ओके, मैं तेरे को रेस्पेक्ट कुछ खास वास नहीं करता, नॉर्मल रेस्पेक्ट करता हूं. मैं तेरा शो कभी भी मेरा मन करे मैं देखने जाऊंगा. जब भी मेरा मन करे मैं तेरा शो को नहीं देखूंगा, लेकिन तेरा फिल्म अगर मुझे देखना मन करे मैं जाकर देखूंगा. जैसे मैं राजा हूं, कस्टमर इज द किंग. मैं राजा हूं और मेरे सामने तू नाच रहा है, मेरे सामने तू कुछ एक्टिंग कर रहा है, और मैं बोला अच्छा है और मैं एंजॉय करूंगा. समझे? तो कस्टमर इज द किंग, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट. एंड अड्डी पसलिया किसी की एक हो जाती है यार 20,000 महीने कमाने में, 10,000 महीने कमाने में, और 250 आप दे रहे हो हफ्ते में 2 बार आने वाले बंदे को. महीने में 8 बार आता है और 60 करोड़ उसका पॉकेट में. और प्लस उसका along with that he is a producer of कपिल शर्मा शो. कितना मिलता होगा उतना पैसा वो कितना बांटता होगा जब गरीबों में? क्यों बांट रहा पता है? उसको ऑलरेडी उसको मिल रहा है. अगर वो ऐसे रखेगा ना, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, या कुछ मतलब वैसे आइडियल हो जाएगा. वो देख के लोग खरीद रहा है और आगे के फिल्म भी उसको हिट करवा रहा है. तो ये दिमाग है उसकी. मैं तो बोलता हूं मेरे को अगर तुम 10 करोड़ दोगे ना, 5 करोड़ गरीबों में बांटूंगा. तुम क्या बोल रहे हो? 250 करोड़ देके 10 करोड़ देने वाले को 15 करोड़ देने को बहुत बड़ी बात बोल रहे हो. इनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं अक्षय कुमार जी, जो करते हैं ऐसा, जो कितना टैक्स देते हैं और जवानों के लिए कितना कितना किया है. और
बहुत सारे लोगों को कोविड के लिए भी कितना दान किया है। तो मुझे कंपेयर नहीं करना है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जैसे ही इकोनॉमिक ये बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एक बंदे में बढ़ जाएगा, तो वहां पे एब्सोल्यूट पावर ऑफ करप्ट एब्सोल्यूटली हो जाएगा, उब जाएगा। एक इंसान में जब पावर आ जाती है, उसमें हेकड़ी आ जाती है, उसमें अहंकार आ जाता है, उसका नेगेटिव यूटिलाइज नेगेटिव भी कर सकता है। सब लोग भगवान नहीं होते भाई। सलमान तो कहीं पे भी भगवान नहीं है, कोई एंगल से भी भगवान नहीं है, पहली बात। अभी तीसरा पॉइंट है, द शो डजंट केयर अबाउट द प्रिंसिपल्स, इट नाउ इट इज जस्ट केयर अबाउट द एंटरटेनमेंट, इट डजंट केयर अबाउट द प्रिंसिपल्स। मैं एग्जांपल देता हूं, 6-7 साल पहले जब बहुत हिट हुआ था वो शो, वो सीजन, उनका नाम मैं भूल गया, गौतम गुलाटी कुछ बुरा बोला, 2 हफ्ते तक सलमान ने कुछ नहीं बोला, 1.5 हफ्ते तक सलमान ने कुछ नहीं बोला। ओके, कुछ गौतम गुलाटी ने बोला था, उतना बुरा भी नहीं बोला था, वो सबको पता है कि वो दर्द में बोला था। ओके, इतना दर्द हो तो कोई भी पागल हो जाए यार, जब सेंसेस नहीं है तो तू क्या क्या नहीं करता इंसान। तो इतना बुरा बोला कि 1.5 वीक्स तक वो चुपचाप रहा। 1.5 तो वीक्स के बाद सलमान को होश आया, अरे ये तो गलत हो रहा है, पागल हो गया क्या। उसने ट्विटर में रेस्पॉन्स देखा है, इसने इंस्टाग्राम में रेस्पॉन्स देखा है, सब जगह पे जाकर रेस्पॉन्स देखा। अभी मैंने सपोर्ट किया तो मेरे लिए भी अच्छा है करके बोल के सोच के सपोर्ट किया, वरना सलमान खुद एक बुल्ली है, ये सब बुल्ली सिंपल। अगर वो बुल्ली है तो दूसरे को बुली करते हुए देखिए उसको बुरा लगेगा, वो खुद को बुली बोल रहा है ना, तो मतलब बुली सिर्फ वो खुद कर सकता है, दैट इज ऑल्सो हिपोक्रेसी। तो he might have become a better person, but that doesn't mean that is missing the show as having a value right now. वो इंपॉर्टेंस अभी टैलेंट को देता है, अभी एंटरटेनमेंट को देता है, प्रिंसिपल्स को नहीं देता, नाटक करते के प्रिंसिपल्स को देता है करके वैल्यू। So that's what, the acting, the hypocrisy level has gone up a lot. So we don't want to encourage this kind of shows in future unless the show host should change, and the amount is too much, man. 250 crores for 4 months. I envy him, but everybody will envy him for the amount that he's getting, यार। दो दिन में, हफ्ते में 2 दिन आके वो 250 करोड़ कमा रहा है, साइड में वो प्रोड्यूसर भी है, he might be earning 500 crores in a year। कितना देता है लोगों को, कितना देता है। तो मुझे ज्यादा बात नहीं करना अभी, ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से शो को बॉयकॉट करना चाहिए। अभी आप लोग सोचो कि बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं। मैं तो पक्का बॉयकॉट कर रहा हूं, खत्म कहानी, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं अगर एक बंदा भी नहीं देखूं उसका इफेक्ट होगा। और मैं अपने को बहुत वैल्यू करता हूं, अपने को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। वो मेरे अंदर, मेरे सैलरी भी वो ले रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है 250, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो मेरा सैलरी, मेरे हिस्से का पैसा भी खा रहा है। ओके, तो आई कैनॉट टेक दैट, I cannot take that lying down. That's it. This is Rahul Mohan Chandran, the greatest performer the world has ever seen.